In today's video, we will be discussing the lobes of the lungs. The lungs are divided by the fissures, and these fissures are of the variable lengths. And the lobes in the right lung are 4 in number, and in the left lungs they are 3 in number. The 4 lobes are the apical lobe, the cardiac lobe, the diaphragmatic lobe, and the accessory or intermediate lobe. And in the left lungs, there are only 3 lobes present, which are the apical lobe, the cardiac lobe, and the diaphragmatic lobe. The intermediate or the accessory lobe is not present in the left lung. Let's see all these lobes. See here. So this is the left lung and this one is the right lung. Here you can see the apical lobe. This is the apical lobe. You can see here this is the cardiac lobe. This is the biggest one, the largest one is your diaphragmatic lobe. And there is an extra lobe which is present only in the right lung, which you can see only when you flip it, and you can see it on the medial surface. Let's see it. So here is this is your intermediate lobe which is only present in the right lung. ठीक है, तो ये आपको वेंट्रली देखो, ये हाइलस दिख रहे हैं, तो आपको ये मीडियली नॉट वेंट्रली, मीडियली आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट our discussion with the apical lobe. So the apical lobe is large and partially divided into cranial and the caudal part. Cranial and the caudal part only in the right lung. So the apical lobe is divided into cranial and caudal part only in the right lung. It is not subdivided into the left lung. The apical bronchus supply air to the apical lobe in the right lung. दैट मीन्स कि जो हमारे पास एपिकल लोब होती है राइट लंग की, उसके लिए वेंटिलेशन एक अलग ही ब्रोंकस से होता है, दैट इज़ नोन एज द एपिकल ब्रोंकस, विच यू कैन सी हियर. सो ये ट्रैकिया जा रहा है, ये ट्रैकिया यहाँ पे तो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है, एंड दिस डिवीजन इज द एपिकल ब्रोंकस विच सप्लाइज टू द एपिकल लोब ऑफ द राइट लंग. द एपिकल लोब इज स्मॉल इन द केस ऑफ द लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग का एपिकल लोब छोटा होता है, दैट यू कैन सी हियर in this picture as well. So here is the apical lobe of the, this is the apical lobe of the right lung, and this one is the apical lobe of the left lung. तो ये दो पार्ट्स हैं इसके, कैरेनियल एंड द कॉर्डल पार्ट, तो बड़ा होता है राइट का. ठीक है, नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द कार्डियक लोब. सो द कार्डियक लोब इज elongated and related to the heart. as the name suggesting, cardiac means heart. तो ये जो लोब है ये हार्ट के पास होती है. कार्डियक लोब अलॉन्ग विद द एपिकल लोब फॉर्म्स द एक्सटेंसिव कार्डियक इम्प्रेशन. जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग के अंदर जो कार्डियक लोब होती है वो स्मॉल होने के कारण क्या एपिकल लोब के साथ काफ़ी एक साथ एक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव कार्डियक इम्प्रेशन. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो फिशर्स होते हैं किसके, एपिकल लोब और कार्डियक लोब के, वो ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को हम समटाइम्स एक ही लोब के जैसे रेफर भी कर देते हैं किसी किसी बुक में, और इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव कार्डियक इम्प्रेशन का एक फॉर्मेशन होता है इन दोनों लोब्स के बीच में फिशर डीप ना होने के कारण. Now the third lobe we have is our diaphragmatic lobe, and this is the largest lobe. This you have to remember. This can be an OT. It is placed caudally. Diaphragmatic lobe नीचे की तरफ होता है, that is why it is called the caudally. नीचे in the sense कि आप एनिमल को देखोगे तो caudal part की तरफ दिखेगा. ठीक है, अभी डायग्राम में दोबारा देखेंगे. It is related to the diaphragm. ठीक है, easy. Last lobe is your intermediate lobe, or we call it a accessory lobe. It is only and only present in your right lung. इट इज़ अटैच टू द डायफ्रागमेटिक लोब. अब देखो ये होता है क्या है, एसेसरी लोब एक इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइंगुलर मास. देखो स्ट्रक्चर देखो इसका, तो ये आपको किस शेप की दिख रही है, इट इज़ लाइक एक ट्राइंगुलर मास यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, इट इज़ लाइक इन ट्राइंगुलर मास विच इज़ अटैच टू द डायफ्रागमेटिक लोब. ये जो पीछे वाली लोब है ना, पीछे की तरफ, दैट इज़ योर डायफ्रागमेटिक लोब, तो उससे अटैच्ड है. ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, मीडियल एक्सपेक्ट पर पाई जाती है. ठीक है, इट इज़ प्लेस कॉर्डल टू द हाइलस. ये हाइलस के कॉर्डल प्रेजेंट होता है, ये हाइलस है, और ये हाइलस का कॉर्डल वाला हिस्सा होगा, ये क्रेनियल वाला होगा. ठीक है, तो ये हाइलस की कैसे प्रेजेंट होती है, कॉर्डली प्रेजेंट होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लोब्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will be discussing the comparative study of the lungs, and with this we will completing our lungs anatomy. Thank you.